Dear students, welcome all of you. So today we are going to read Science for class 7 and this is our unit 2nd. As you know, we have read some topic about this unit and this is our next topic. Okay, so let's begin. Our first topic is about the nutrition in amoeba. यानी अब हमको जानना है कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है और किस तरीके से होता है, ठीक है, उसकी प्रोसेस को जानना है अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा. एंड एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ए लिटिल अबाउट द अमीबा. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, amoeba is a unicellular organisms that can be seen only under a microscope. It is found in ponds and ditches. It eat microscopic plant and animals that float in water. Okay, and second is the an amoeba has an irregular shape and consists of a cell membrane, nucleus, and many small vacuoles. Okay, and now first of all, amoeba is a unicellular organisms. But we humans are multicellular organisms, means amoeba has only and only one cell. Okay, so one cell is too small that we can't see it with our naked eye, and so we need to microscope to see it. Okay, and it is found in the ponds and ditches. Okay, and it eats microscopic plants or animals, okay, that floats on the surface of water. Okay, and the shape of amoeba is not a regular. That means it have a irregular shapes and contains some parts of cells like the cell membranes, nucleus, and the small vacuoles. Okay, these are the parts of cell, but amoeba is only unicellular, so it has only parts of cell. Okay, and nothing else. So हमको पढ़ना कि अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है, ठीक है. तो हमने पहले पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में अमीबा के बारे में कि अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है, एक कोश के जीव होता है. ओके, ये इतना छोटा होता है. अब देखो एक कोशिका तो बहुत छोटी होती है, तो इतनी छोटी होती है कि हम इनको हमारे नग्न आई से नहीं देख सकते. जो आँखें हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप इनको नहीं देख पाते, बहुत ही स्मॉल होते हैं. तो हमको जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की सूक्ष्मदर्शी की. हम सूक्ष्मदर्शी देखते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादा तालाबों में या फिर जो गड्ढे छोटे मोटे गड्ढे होते हैं वहाँ पे पानी भरा होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं. और ये क्या खाते हैं, बहुत ही जो सूक्ष्म प्लांट या सूक्ष्म जीव है जो पानी में तैरते हैं उनको खाते हैं. और अमीबा की जो शरीर की बनावट होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है, वो इरेगुलर होती है. और देखो अमीबा एक कोश की है, यानी सिर्फ एक कोशिका है, तो इसकी बॉडी में पार्ट्स भी सिर्फ कोशिका के पाए जाएंगे. और देखो कुछ कोशिका के पार्ट्स हैं, जैसे मेम्ब्रेन हो गई, झिल्ली हो गई चारों तरफ, एक न्यूक्लियस केंद्रक हो गया, स्मॉल वैक्यूल्स हो गए जिनको हम रिक्तिकाएँ बोलते हैं, ठीक है. ये 3 पार्ट्स हैं इसके अमीबा की बॉडी के, ठीक है. अब आगे डिस्कस करेंगे हम अबाउट द अमीबा. ओके, फर्स्ट, एन अमीबा कैन चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन कॉन्स्टेंटली. It give out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet on sensing food to engulf the food particle and push it inside the body. And amoeba has no mouth or no digestive system. Second is the food particle taken inside the body form a food vacuole. Digestion of food particle is made possible by digestive juice secreted into the food vacuoles. They act on food to break it down into simpler substances. Then the digested food is absorbed and assimilated the undigested food throughout the point of the body. Okay, we have read about the nutrition system in the amoeba. Okay, first of all, as you know, the amoeba is unicellular and the shape of amoeba is not fixed. Okay, means it change its shape regularly. ठीक है, जो अमीबा होती है उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है. और दूसरा, ये अमीबा भोजन कैसे लेता है, विद द हेल्प ऑफ शूडोपोडिया. तो शूडोपोडिया होते हैं, इनको हम फाल्स फीट भी बोलते हैं. अब जब फाल्स फीट क्यों बोलते हैं तो यहाँ पे देख लो. ओके, ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ठीक है, येलो कलर में ये एक अमीबा है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये फूड है, ठीक है. ये माइक्रोस्कोपिक फूड है, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी फूड है, सूक्ष्म फूड है.
अब क्या करेगा, जैसे ये इसके क्लोज आएगा, फूड के क्लोज आएगा ये अमीबा, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ओपन हो जाती है। तो स्ट्रक्चर ओपन हो रही है, ये देखो आपको दिख रही होगी स्ट्रक्चर ओपन, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। फॉल्स फीट झूठे पैर इसलिए बोलते हैं, देखो इनकी स्ट्रक्चर पैर की तरह होती हैं, इसलिए इनको फॉल्स फीट बोलते हैं। फॉल्स फीट हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे ही इसके पास में आएगा ये स्ट्रक्चर को ओपन कर लेगा और इसके अंदर चले जाएगा। अंदर जाने के बाद में ये वापस इसको क्लोज कर लेगा। ठीक है, ये इसको क्लोज कर लिया या फिर इसको एंगल्फ कर लिया, निगल लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अभी क्लोज हो गया और क्लोज होने के बाद में अंदर ये बना लेगा, एक वैक्यूल बना लेगा, रिक्तिका बना लेगा। ठीक है, अब अंदर जाने के बाद में इसका क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा। ठीक है, ये देखो डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होएगा। लेकिन इसकी अमीबा है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, तो डाइजेशन कैसे होगा, इसमें पाई जाती है डाइजेस्टिव जूस जो इसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, फिर सेकंड इज द एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो अमीबा की बॉडी होती है ये थ्रू द डिफ्यूजन के थ्रू इसमें से न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और एसिमिलेशन, जो एसिमिलेशन क्या होएगा, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया था वो जो फूड में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया था वो बॉडी में एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में जो एजेशन सिस्टम है, ये एजेशन सिस्टम क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी अगेन एक सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, ये बना रखी है। यहाँ से अनडाइजेस्टेड जो फूड है पार्टिकल्स है उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमीबा। ओके, फर्स्ट इज द इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। समझ में आ गया कैसे कैसे एब्जॉर्ब करता है। इसमें ना तो स्टमक होता है ना कोई माउथ होता है। माउथ अगर मान लो इसने यहाँ से जो सूडोपोडिया से की हेल्प से अंदर इसने फूड को एब्जॉर्ब किया या फिर अंदर निकला इसने, अगर मान लो फूड यहाँ पे होता तो ये ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाती। जहाँ पे फूड आता है वो वहाँ पर ऐसे सूडोपोडिया फॉल्स फीट निकल आते हैं और वहाँ से उसको अंदर निगल लेता है। ठीक है, इसलिए माउथ की इसको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दूसरा, इसकी पूरी बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, तो इसका पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों कि जहाँ से ये फूड अंदर जाएगा वहाँ पे क्या होगा, ऐसी जो ये बन रही है ऐसी वैक्यूल बन जाएगा। ऐसा ये वैक्यूल बन रहा है, इसमें वैक्यूल बन रहा है, इसमें क्या होएगा, डाइजेस्टिव जूस होता है जो इसको डाइजेशन में इसको डाइजेस्ट कर देगा और बाद में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अगेन सूडोपोडिया स्ट्रक्चर बनाएगा और शरीर से एक्सपेल आउट कर देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द nutrition in amoeba. Okay, I hope all of you get very well. Thanks for today.